So today we are beginning with this topic of concave mirror, drawing the ray diagrams for concave mirror. In the previous class, we studied about the uh, technical terms related to spherical mirrors, that is center of curvature, radius of curvature, focus, focal length, aperture. Today we are going to focus on drawing ray diagrams, how to draw ray diagrams. So there are first certain rules we need to follow for drawing ray diagrams, and those rules are very well shown by these diagrams over here. The first rule is, okay, so these rules are for finding image formed by concave mirror, or drawing a ray diagram for finding image formed by a concave mirror. First rule says that if a ray of light is incident parallel to the principal axis, after reflection it converges and passes through the focus. So जो ray of light parallel incident होती है वो converge होके reflection के बाद focus से pass करती है. Second rule is the ray of light which is incident through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, exactly opposite to the first rule. पहले वाले रूल में रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया. सेकेंड वाले रूल में रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई. ओके, थर्ड वाले रूल में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट if it is passing through the center of curvature, it is reflected back along the same path. और ये इसलिए होता है, मैंने पहले भी इस बताया था कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट इसलिए होती है बिकॉज इफ़ यू जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल. सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर पे कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो वो नॉर्मल बन जाएगा उस पॉइंट पे मिरर का. तो नॉर्मली जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है, ये तो हमें पता ही है. एंड दैट्स वाई दिस इज द केस. थर्ड केस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट through the center of curvature gets reflected back through the same path. There is one more ray of light which they have not discussed over here. यहाँ पे रूल 4 में ये बताया है. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट सेपरेटली एंड शो यू. इफ एन इंसिडेंट रे strikes the pole making some angle with principal axis, then the reflected ray also makes the same angle with the principal axis. So let me show you कि ये फोर्थ रूल क्या बोल रहा है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर. प्लीज़ excuse my drawing because I'm not using any geometrical instruments like scale or anything like that. Yeah, so any ray of light which strikes the concave mirror and makes an angle of incidence I with it at the principal axis, then it gets reflected back by making an angle of reflection with the principal axis such that I is equal to R. So ये सिर्फ पोल पे होता है, ये सिर्फ पोल पे होता है. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर मेकिंग एन एंगल I gets reflected back by making an angle R with the principal axis such that I is equal to R. ठीक है, so this is the fourth rule for drawing ray diagrams. Now there are certain you can say steps for finding the images. Let me directly go to the cases which are involved over here. Rather than reading about how to draw it, I will show you exactly how to draw it, and we will talk about the sign convention. We already have talked about the sign convention, but we will talk about its you can say conclusions after drawing the ray diagram. So right now it's not the time to talk about the conclusion. Let's start by drawing the ray diagrams. So what we are doing over here is, let me show you separately. What we are doing over here is, suppose this is your concave mirror. Okay,
this is your concave mirror, this is your principal axis. Concave mirror, principal axis. Suppose this is your focus, this is your center of curvature, right? What we are going to do is we are going to place the object at 6 different positions and find the image characteristics for particular position of an object. So positions of object number 1 is, so they are starting from near the lens and then they are taking the object far. We will also do the same. You can do any way around. So first position of the object is between F and P, between focus and pole. So object will be kept somewhere over here like this. This is how you draw the object and you name it A, B. Okay, then you draw certain rays from this object and obtain a ray diagram. So this is the first position of the object. Second position of the object is at F. The object will be kept at focus. Third position of the object is between C and F, between center of curvature and focus. Fourth position of the object is at C, at the center of curvature. Fifth position of the object is beyond C, beyond center of curvature. And sixth position of the object is at infinity. So किसी book में ये उल्टा दिया होता है. First position is at infinity, then beyond center of curvature, at C, beyond C and between C and F, at F and between F and P. ऐसा उल्टा दिया होता है. Doesn't make any difference. These are the 6 positions for which you have to draw the ray diagrams. ठीक है? So first position is between focus and pole. अब तुम्हें क्या करना है? Let me tell you first. See, you have to find the image when the object is located at these points. Now somebody might have this question के object जब infinity पे होता है तो यहाँ पे draw क्यों नहीं किया object? Object infinity पे है. Infinity is a very far away distance. Infinity एक बहुत दूर का distance होता है. So infinity हम draw नहीं करते हैं. We do not draw infinity. ठीक है? मैं बताऊंगा कि infinity से जब rays of light आती है तो how the image is formed. But we do not draw the object which is at infinity. सिर्फ उससे जो rays of light आ रही है सिर्फ वही draw करते हैं हम लोग. तो वो कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? So let me draw one ray diagram for you and show you कि क्या टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहला रूल है रे डायग्राम में कि दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. रे डायग्राम ड्रॉ करना कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है. सो डोंट थिंक कि मुझे मेजरमेंट लेके ये सब करना पड़ेगा या कंपास से ये आर्क बनानी पड़ेगी जिससे हम स्फेरिकल या कॉनकेव मिरर बनाने वाले. नहीं, तुम्हें ये फ्री हैंड बनाना है बट नीट बनाना है. फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि तुम रफ बनाओगे. नीटली फ्री हैंड में ये तुम्हें लेंस ड्रॉ करना है. हाँ, कुछ बच्चे अगर चाहते हैं तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट बैंड टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट बट इट इज़ ओनली द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू are not supposed to do it with any measurements. You have to just represent the ray diagram. You don't have to geometrically construct the ray diagram. ठीक है? So no measurements are to be taken anywhere. Everything will be freehand. And here there are certain techniques we will use to draw the ray diagram. तो जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन फोकस एंड पोल. तो मैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बना देता हूँ. अब तुम देखोगे मैंने मिरर बनाया, पोल बनाया, लेकिन फोकस कहाँ पे ये मैंने बताया नहीं अभी तक.
ये मैंने इसलिए नहीं बताया है बिकॉज आई विल नेम द पॉइंट्स दैट इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ द साइड्स लेटर आफ्टर ड्रॉइंग द इमेज. And for that, one thing is absolutely necessary. You have to remember the image characteristics beforehand. ठीक है, अब मैं आई विल जस्ट इमेजिन कि मुझे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, तो इस केस में क्या होगा. ठीक है, अब रे ऑफ लाइट विल बी इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. इसको मैं लिख देता हूँ ए बी, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. And after it is incident parallel to the principal axis, it will be reflected, it will converge and be reflected and will pass through the focus. ठीक है, so क्या हुआ, ray of light incident हुई parallel to the principal axis and it got converged and it passed through the focus. राइट. दूसरी रे ऑफ लाइट मैं जो बनाने वाला हूं, दिस वॉज द फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो रूल्स में हमने पढ़ी थी. दूसरी जो रे ऑफ लाइट मैं बनाऊंगा दैट इज इंसिडेंट एट द पोल मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ओवर हियर. इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक by making an angle r over here such that I is equal to r. देखो मैं कहीं पे स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, बट देखो कितना अच्छा बनेगा ये इमेज. So these both reflected rays wherever they intersect, image वहां पे फॉर्म होगी. But as you can see in the figure, these two rays of light, reflected rays of light, are diverging. They are going away from each other. They will never meet at this side. मतलब image, real image तो कभी नहीं बनेगी. But if you produce them backwards, ठीक है, image will be formed over here. Do you understand? Image will be formed over here. तो यहां पे ये इमेज कैसी बनी है? The image formed is virtual, erect and magnified. So ये है A dash B dash. A dash B dash. अब इमेज कहाँ पे बनती है? Where is the image located? मैंने इसका क्या बताया? नेचर बताया. नेचर क्या है इमेज का? See, what I'm writing over is known as image characteristics. इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें नंबर 1 क्या है? नेचर. नेचर क्या है इमेज का? इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. सेकंड, साइज. साइज क्या है इमेज की? इट इज मैग्निफाइड. एंड थर्ड थिंग इज द पोजीशन, जहां पे हमको प्रॉब्लम आया. प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है. तो यहाँ पे सपोज मैं मान लूँ कि फोकस है. ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं मान लूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, सेकेंड वाला. राइट, दिस इज एफ डैश एंड सी डैश. मतलब दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज शुड बी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. सी, आई कैन बी श्योर अबाउट द you can say the nature, virtual and erect तो definitely है, magnified भी है. I am very sure about this. But the last characteristic, that is position of the image, I am not very sure about. इसके लिए I am giving you this tip that you have to memorize the image characteristics of images formed for different locations of the objects in front of a concave mirror beforehand. तुम्हें ये सब पहले ही मेमोराइज करके रख देना है टेबल को पूरे, कि हर एक अलग अलग पोजीशन के लिए इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर तुम्हारी इमेज कहां पे बनेगी. इफ यू रिमेंबर ऑल दैट पोजीशंस एंड इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज, देन आई डोंट थिंक that there will be any confusion while drawing the ray diagrams, because ray diagram मैंने पहले ही बताया, you are not going to
use any constructions. So let us see. ये तो मैंने बना दिया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है. लोकेशन ऑफ द इमेज में क्या बोला है? बिहाइंड द मिरर. क्या बोला है? बिहाइंड द मिरर. सो आई डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट द पोजिशन ऑफ द इमेज इन दिस केस. पोजिशन में सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा? बिहाइंड द मिरर. तो मेरा जो रे डायग्राम है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू ड्रॉ द रे डायग्राम. ऐसे बनाते हैं रे डायग्राम. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके नहीं बनाना है, समझ के बनाना है, अंदाजे से बनाना है. और एफ और सी की पोजीशन बाद में लिख सकते हो तुम आराम से, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैचिंग with the actual image characteristics given in your textbook. देखो यहाँ पे दिया है लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखो वर्चुअल इरेक्ट अपना भी करेक्ट था, और इमेज साइज देखो मैग्नीफाइड, एनलार्ज. सो ये एक अकेला एक लौता केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड तो बनती है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये एक ही केस में बनती है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. रिमेंबर दैट. ठीक है. सेकेंड केस देखते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था? बिटवीन फोकस एंड पोल. सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहां पे? फोकस पे. अब यहां से दो रेज ऑफ लाइट हमने ड्रॉ की है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच कन्वर्जेस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, एक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ. अब इस केस में तुम देखोगे कि जो दोनों रेज ऑफ लाइट है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इसका मतलब क्या है? कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट या पैरेलल लाइंस बोलो, ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, दे नेवर मीट. बट इट इज सेड दैट वी नेवर यूज द वर्ड नेवर इन फिजिक्स, in mathematics, in science in general. We do not use the word never. These rays of light which are reflected, they never meet. We don't use never. We say that they meet at infinity. If they meet at infinity, इसका मतलब क्या है? If they meet at infinity, इसका मतलब क्या है? If they meet at infinity, इसका मतलब है कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी. अब तुम अगर देखोगे ये जो रेज ऑफ लाइट है दे आर एक्चुअली गोइंग बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे इन्फिनिटी पे सपोज, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. लोकेशन क्या है इमेज का? इन्फिनिटी. नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड. और ये बहुत दूर जाके मिलेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना इमेज बड़ा हो जाएगा. द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड. बहुत बड़ी इमेज बनेगी. एंड नोट दैट दिस इज द ओनली केस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज एट इंफिनिटी. दिस इज द ओनली केस when the image formed by concave mirror is at infinity. ठीक है. So image is real and inverted, it is highly enlarged and it is formed at infinity in the second case when the object is kept at the focus. The third case, when the object is placed between F and C. The object is placed between focus एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और दूर लेके गए. रिमेंबर द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज हियर बिटवीन फोकस एंड पोल. द सेकेंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज हियर एट द फोकस. नाउ ऑब्जेक्ट थर्ड पोजिशन इज ओवर हियर, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सो यहाँ पे जो इमेज बनती है दैट इज बियॉन्ड सी. इफ यू सी वन रे ऑफ लाइट is drawn parallel to the principal axis which passes through the focus. Another ray of light is passing through the focus which becomes parallel after reflection. So they meet beyond C. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करते टाइम you have to be little smart. तुम्हें थोड़ा सा चीटिंग करना पड़ेगा. So
लोग सोच रहे होंगे कि कैसा टीचर है, चीटिंग करना सिखाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे चीटिंग करना मीन्स यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। सो क्या स्मार्टनेस अपने को दिखानी है, देखो यहाँ पे फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ। यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ड्रॉ की फोकस से, और ये कहाँ जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे लोग मिल रहे, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है ना। तुम्हारे पास स्केल होगी तो तुम्हारी लाइन स्ट्रेट आएगी। अब ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे तुम बनाओ रियल इमेज, ठीक है। सो ये है ए बी, ये होगा ए डैश बी डैश, बन गया इमेज। अब तुम्हें पता है बिकॉज के इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तो यहाँ पे सी लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इमेज बन गई। दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। Do you see that? This is how you draw a ray diagram. This is how you make it little easier for you by not marking the points, focus, center of curvature whenever required. So in this case, the image is formed beyond C on the same side of the mirror as that of the object. Image is real and inverted and it is magnified. Image की size देखो थोड़ी बड़ी है object से. So image is how is it? The size is magnified, it is real inverted and it is beyond C. The fourth case is when the object is placed at C, and this is I think the most interesting case. इस केस में ना रे डायग्राम कैसे बनाना है, let me just give you a little hint. So क्या होता है, यहाँ पे सपोज फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब इस केस में एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज होती है, इमेज रियल इन्वर्टेड होती है, लेकिन वो कहाँ पे बनती है, वो भी सी पे ही बनती है। एंड इमेज इज नॉट एनलार्ज और डिमिनिश, इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा ना तुम्हें चीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट शो यू। पहली बात तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क मत करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क मत करो, सॉरी फोकस को मार्क मत करो, ठीक है। इतना सा बनाया तुमने, अब तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस मार्क नहीं करना है, पोल किधर है, यहाँ पे है, और कुछ मार्क मत करो। अब सीधा सीधा सेम साइज, जितनी ये ऑब्जेक्ट की साइज है ना, उतनी ही साइज का यहाँ पे एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बना दो। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब एक काम करो, अब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, और उसको टच करो ऑब्जेक्ट के टिप से, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करो ये पॉइंट से, और इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये पॉइंट कौन सा है, तुम्हारा फोकस। समझे? सो यू विल गेट एन इमेज विच इज एग्जैक्टली द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, and it is real, it is inverted, and it is formed at C. This is the fourth position of the object. ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, U नेगेटिव, V नेगेटिव, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक टेक्निक है जिसका हम लोग यूज़ करके इसको समझेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट को अभी C से भी बियॉन्ड लेके गए, तो यहाँ बहुत ईजी है। यहाँ पे एक रे जाती है पैरेलल एंड देन पासिस थ्रू फोकस, दूसरी रे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और जो इमेज बनती है दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। छोटी सी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड है, एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन C and F, बिटवीन C and F, between center of curvature and focus. This is the fifth position when the object is placed beyond C.
and sixth position when the object is at infinity. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, यहाँ से दो रेज हमने सिलेक्ट किए, वन रे ऑफ लाइट विच इज getting incident at any point on the mirror. अब इस पॉइंट पे तुम्हें एक काम करना है, एक लाइन बनानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से. दिस लाइन विल एक्ट एज अ नॉर्मल. तो यहाँ पे जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे विल बी द सेम. So incident ray of light will be reflected back in this direction, making the angle of incidence and reflection equal over here. And this incident ray of light which is incident at pole, for this the principal axis will act as a normal. So here I and R will be the same. So they will both be reflected back and they will meet at this point. Now this point is exactly above the focus. So what smart thing you will do is you will not mark the focus beforehand. You will draw this ray diagram and then you will mark the focus and center of curvature. ठीक है? So you will get an image which is at the focus, it is real inverted and it is highly diminished when the object is placed at infinity. ठीक है? So these are the 6 positions of the object in front of a concave mirror. Now there are certain uses of concave mirror. Concave mirrors are used for concentrating sunlight to generate high temperatures in solar furnaces. They are used as shaving mirrors because it shows magnified image when the face is very close to the mirror, that is between pole and focus of the mirror. It is also used by dentists to see enlarged images of teeth. They are used as reflectors in torches, car headlights, searchlights to guide the powerful rays of longer distances. It is also used by ENT doctors to focus light in ears or nose. So these are the uses of concave mirrors. Okay, so these conclusions I'm going to talk about after completing all the ray diagrams. Now next kind of ray diagrams which we are going to talk is about why they are in so much of a hurry for mirror formula. Let us finish convex mirrors, then we can do mirror formula. Okay, so no problem, we are not in a hurry. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना है कि ये जो टेबल है ना, ये तुम्हें लर्न करना है. You have to learn the position, size and nature of the images formed by concave mirrors. यहाँ पे अगर तुम देखोगे 6 positions है, infinity से लेके between pole and focus तक. हर एक position के लिए image कहाँ पे बनती है, size of image क्या है और nature of image क्या है, ये तुम्हें लर्न करना है. ये टेबल तुम्हें अगर बिफोर हैंड लर्न होगा तो रे डायग्राम बनाने में तुम्हारी गलती नहीं होगी, फिर तुम आराम से वो चीटिंग कर सकते हो जो मैंने तुम्हें सिखाई है. दैट टेक्निक यू कैन यूज़ सो दैट सी क्यों चीटिंग करना ज़रूरी है, क्यों अगर तुम यू नो लाइक इफ़ यू डोंट measure and all, why is it convenient, and if you measure, why it is inconvenient. See, this thing I will explain in the physical class. So as you all know that physical classes have started, and we have already been discussing certain important facts regarding these things in the physical class. So I want all of you to understand that there are certain things which I cannot discuss in the video here. I have to show you that, right? So I'm going to show you, I'm going to discuss a few more techniques, or you can say points, and clear your doubts regarding why I choose this certain technique of remembering the table first and then drawing the ray diagram with this pre knowledge of this information. That why is that important and convenient, that I'm going to discuss in the physical class. So please attend the physical class. I'm sure I know that I'm completing the syllabus, but there are certain techniques which cannot be completed in the syllabus online. For that I want you to come and discuss with me, because I know by now many of you don't know that how to draw ray diagrams, but
I'm sure that many of you are not, you can say, much more comfortable with the idea of ray diagrams till now. For them, it is very necessary to see me personally and learn this technique. So you're welcome, please come. Okay, next I'm going to directly go into convex mirror, and I'm going to first give you good news. The good news is in convex mirrors, there are just 2 positions. In concave mirrors, there were 6 positions of the objects in front of the mirror. Here there are just 2 positions. First position is when the object is at infinity. And second position is where object is anywhere between infinity and pole of a convex mirror. Object is anywhere between infinity and pole of a convex mirror. ठीक है, तो ये 2 ही पोजीशन के 2 ही रे डायग्राम और उनकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को लर्न करनी है. बट सबसे पहले आते हैं रूल्स. पहला रूल है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस. ये यहाँ पे नहीं है ये रूल. ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं बताया ये. लेट मी जस्ट शो कहाँ पे ये रूल. हाँ, ये रहा, ये वाला रूल है. When the ray of light is incident parallel to the principal axis, it diverges and appears to be coming from the focus behind the mirror. Convex mirror की बात है ये. ये first rule है. Second rule says that when the ray of light is incident towards the center of curvature, it is reflected back along the same path. ठीक है, it retraces that same path. और थर्ड रूल यहाँ पे बोला नहीं है. थर्ड रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ. थर्ड रूल है इज सेम लाइक कॉन्केव मिरर्स. ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है. सो थर्ड रूल सेज दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक in such a way that the angle of incidence made by the incident ray with the principal axis is same as the angle of reflection made by the reflected ray with the principal axis. ये थर्ड रूल है तुम्हारा. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर वाइल ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. अब केस 1 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, एक ही टाइप की इमेज बनती है और एक ही पोजीशन पे बनती है. एक ही पोजीशन मतलब उसी एरिया में. तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, इंसिडेंट हुई, एंड इट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक सच दैट it is coming from the focus. And दूसरी ray of light towards center of curvature गई and got reflected back along the same path. ठीक है, अब दोनों ray of light को अगर तुम देखोगे, इसको अगर मैं आगे इंसिडेंट प्रोड्यूस करूं, तो ये दोनों ray of light में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है. डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब ये दोनों डाइवर्ज हो रही है. इसका मतलब दोनों डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे तो कहीं मीट नहीं करेगी. सो इफ यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड, दे मीट ओवर हियर. सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपियरिंग टू मीट. द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड. It is highly diminished and it is formed between pole and focus behind the mirror. So image की location, इमेज का नेचर और इमेज की साइज हमको समझ में आ गई. बट ये गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ एक ही केस है इसमें, तुम्हें अलग अलग केसेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं. इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी तुम रखोगे ऑब्जेक्ट को तो यही इमेज बनेगी. नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. 2 रेज ऑफ लाइट हमने कंसिडर की है. एक तो टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ. एक जा रही है टूवर्ड्स pole and it is getting reflected back by making the angle of incidence and reflection same. अब ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, ये दोनों तो कहीं यहाँ पे मीट करेंगे नहीं.
तो इफ़ यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड दे अपीयर टू मीट एट द फोकस, यहाँ पे मीट करेंगे कहीं पे. सो यहाँ पे फोकस पे वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एट द फोकस बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर. इसमें भी टेक्निक याद रखो, फोकस को बाद में नाम देना जब रे ऑफ लाइट मीट करेगी जहाँ पे, और जहाँ पे तुम इमेज बनाओगे वहीं पे फोकस का नाम दे देना. ये टेक्निक तुम्हें यूज़ करनी है, ठीक है. सो दीज आर द टू लोकेशंस. अब तुम्हें ये टेबल, एक छोटा सा टेबल है इसका, ये लर्न कर लेना है. इसके यूजेस देख लो कॉन्वेक्स मिरर्स के. कॉन्वेक्स मिरर्स के जो यूजेस है, दैट इज इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर in street light because this mirror diverges the light falling on it, thereby illuminating a larger area. Street light में use करते हैं इसको. Then it is used as a rear view mirror in automobiles because it produces an erect image of objects placed in front of it. The size of the image formed is smaller and therefore it has a wide view of coverage. And all images are formed between pole and focus. A convex mirror is used also as a security mirror and parking area mirror में भी use करते हैं convex mirror को for having a you can say wider area under surveillance. ठीक है. So चलो, now I think it is time to go to the mirror formula thing and sign convention. Mirror formula and sign convention, ठीक है. So सबसे पहले sign convention का एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं and then we'll go to the mirror formula thing. Okay, so all of you must know this one thing which I have already discussed in the previous video, that in both the kinds of spherical mirrors, whether it is convex or concave, there are certain fixed sign conventions which we follow. एक चीज जो हम फिक्स करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, it is always taken from left to right. Direction of incident light is always taken from left to right. ठीक है. यहाँ पे है पोल, ये है तुम्हारा पोल, ठीक है. सो नंबर 1, all distances are measured from pole. जैसे तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन होता है और कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सेस होती है, तो सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? वी मेजर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. वैसे ही in the direction of incident light from the pole, all the distances are measured which are taken as positive, and on the in the direction against the direction of incident light, the distances measured from the pole are taken as negative. Above origin or above principal axis the distances are positive, यहाँ पे सारे positive distances हैं, and below principal axis the distances are negative, यहाँ पे सारे negative distances हैं. Same as your Cartesian plane, ठीक है. यहाँ भी same है, positive distances, negative distances, positive above principal axis, negative below principal axis, ठीक है. तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो हमें याद रखना है. अच्छा, ये जो साइन कन्वेंशंस है, इससे कुछ कंक्लूजन्स हम लोग ड्रॉ करते हैं. कंक्लूजन्स क्या कंक्लूजन्स है? ये दोनों केस में बताता हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों केस में बताता हूँ, एक साथ बताता हूँ, तो इसको नोट कर लेना तुम लोग. नंबर 1, फर्स्ट कंक्लूजन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
u is object distance u is always नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. पोल से जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है, मतलब लेफ्ट ऑफ द पोल, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो सिंबल है दैट इज u. सो u इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर. सेकेंड, इमेज डिस्टेंस v is positive for virtual and erect images and is negative for real and inverted images. Image distance v is positive for virtual and erect images and negative for real and inverted images. इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस के लिए और नेगेटिव होता है फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस. क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनती है उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा v हमेशा नेगेटिव होगा. सो वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और रियल इमेजेस के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव. लेकिन एक बात और याद रखो कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, मतलब वर्चुअल जहां पे आया वहां पे इरेक्ट आएगा ही साथ में. एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. Third, object distance u is always negative. Image distance v is positive for virtual and erect images. Image distance is negative for real and inverted images. Third, focal length f. Focal length f is positive for convex मिरर्स. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर्स में अगर तुम्हें याद है तो, आई एम सॉरी फॉर दैट, कॉन्वेक्स मिरर्स में अगर तुम्हें, इफ यू रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स के ऊपर जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, then they diverge and they appear to be coming from a point. ठीक है, डाइवर्ज करती है और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से निकल रही है. दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दैट इज द फोकस. ठीक है, तो होता क्या है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो वर्चुअल, आई एम सॉरी, जो इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है. वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर है. एक्चुअली रेज ऑफ लाइट फोकस से नहीं निकल रही है, बट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट. फ्रॉम द डेफिनेशन यू मस्ट नो दिस. ठीक है, सो ये रीजन है जिसकी वजह से फोकल लेंथ राइट में होती है, मतलब बिहाइंड द मिरर होती है, मतलब पॉजिटिव होती है. सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज, एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर्स. क्योंकि कॉनकेव मिरर्स में रेज ऑफ लाइट दे कन्वर्ज एंड मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यहां पे मीट करती है रेज ऑफ लाइट, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर्स के लिए. ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट हाइट
ऑब्जेक्ट हाइट h1, h1 है, किसी किसी की बुक में कैपिटल h है, किसी किसी के बुक में h1 है, ठीक है। तो जो तुम्हारी बुक में ऑब्जेक्ट हाइट का सिंबल वो ले लेना, मुझे प्लीज़ मत बोलना कि मेरी बुक में ये है तो ये गलत है, गलत नहीं है, मैंने कुछ अलग सिंबल यूज़ किया है जो मुझे समझ में आता है। ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट इसलिए पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। तुमने रे डायग्राम में देखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इरेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज हाइट h2 is positive for virtual and erect images। वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए इमेज हाइट क्या होता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए इमेज हाइट होता है पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब अबाउ प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज हाइट इज पॉजिटिव। एंड इट इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है तो इमेज हाइट क्या होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, तो इमेज हाइट क्या होती है? नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। Okay, so these are the conclusions which we can draw on the basis of the sign convention if we want to do the numericals। numericals इसके बिना नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही हम numericals करेंगे तो अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो न्यूमेरिकल्स कभी करेक्ट नहीं आएंगे। और एक चीज़ हमें ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, दैट इज़ योर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लेना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हाँ, कैसे भी लिख सकते हो, चलो चेंज कर देते हैं इसको। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्यों यूज होता है? सपोज तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तुम्हें इमेज डिस्टेंस ढूंढना है, तो यू कैन फाइंड इट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी दो चीज़ पता है, तीसरी मिसिंग है, तो वी कैन फाइंड इट। ठीक है, सो इसमें सिर्फ तुम्हें साइन का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। और दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज m इज इक्वल टू h2 by h1 which is equal to minus of v by u। h2 by h1 और minus v by u। let's confirm it once। h dash by h लिखा है यहाँ पे, h dash is height of image, ठीक है, और minus v by u। ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे मिरर फॉर्मूला से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लगता है, और ये क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, ये दो टाइप की वैल्यू तुम्हें मिल सकती है, या तो ये होगी पॉजिटिव या तो है ये होगी नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिलती है, मतलब आगे प्लस साइन है, सपोज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सपोज, oops sorry, if the magnification is positive that means the image characteristic हम पता लगा सकते हैं, the image is virtual and erect। इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और इरेक्ट है मतलब वर्चुअल भी होगा। तो इमेज का नेचर हम मैग्निफिकेशन की साइन से पता लगा सकते हैं।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. So if m is positive, image is virtual and erect. If m is negative, image is real and inverted. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब m का जो वैल्यू है दैट इज मॉड m. मॉड मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस. मतलब m का सिर्फ वैल्यू हम देख रहे हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ m. वी आर नॉट लुकिंग एट द साइन इन फ्रंट ऑफ इट, जस्ट द वैल्यू. ठीक है, तो इसकी वैल्यू तीन टाइप की हो सकती है. ईदर इट कैन बी, ईदर मॉड ऑफ m कैन बी स्मॉलर देन 1, ईदर और मॉड ऑफ m कैन बी equal to 1, or mod of m can be greater than 1. So if it is smaller than 1, then image will be diminished. छोटी होगी image object से. If it is equal to 1, then image will be of same size as that of object. Image will be of same size as that of object. और अगर m की mod of m की size 1 से greater होगी, so image will be magnified. Image will be magnified. मॉड ऑफ एम. मॉड ऑफ एम का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ. सपोज मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई -2. अब माइनस को हटाओ. माइनस का मतलब वो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड. लेकिन ये सिर्फ नंबर को देखो, तो अगर तुम इसको मॉड में डालते हो ना, तो ये क्या बन जाता है पता है? जस्ट 2. किसी भी चीज़ को मॉड्यूलस में डालते हो तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है. अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है. तो सिर्फ नंबर को देखो. नंबर क्या है? इट इज़ ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज विल बी मैग्नीफाइड. तो इमेज इज मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड. तो इमेज का जो साइज है, नेचर है, ये हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता चलता है. जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. ठीक है, सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस, द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द साइन कन्वेंशंस, एंड मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है, h2/h1 एंड माइनस ऑफ v/u. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी यूज़ होगा. ठीक है, लेट्स सी कुछ न्यूमेरिकल्स अगर मिलते हैं तो करेंगे हम लोग. लेट्स सी. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर. लेट्स ट्राई दिस. 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग. अ कॉन्केव मिरर, पहले ही बोल दिया कॉन्केव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. देखो, अगर कॉन्केव मिरर है तो मुझे ये याद रखना है कि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है. तो f कितना होगा? -20 सेंटीमीटर. तो जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट. कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. v दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट. v कितना है? 40. अब रियल इमेज है, रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, इसलिए v होगा -40 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तुम्हें क्या ढूंढना है? u. सो यू नो द मिरर फॉर्मूला, 1/u plus 1/v is equal to 1/f. So 1/u plus 1/-40 is equal to 1/-20. 1/u is equal to 1/-20. अब ये देखो, ये -40 है एक्चुअली, तो यहाँ पे जाके हो जाएगा +1/40. ठीक है, 22 41 1/u is equal to -2 plus 1/40. So 1/u is equal to -1/40. So u is equal to -40 सेंटीमीटर. इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर. दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. So this is how you use sign convention as well as the mirror formula. Very easy. Let's check the answer. Absolutely correct.
दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सब अप्लाई करेंगे. Okay, a convex mirror is used on an automobile, has a radius of curvature 3 मीटर. अब ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, ठीक है. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है. रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सपोज फोकस है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी राइट साइड में है, क्योंकि इसका वर्चुअल फोकस होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये जो डिस्टेंस है दे हैव गिवन एज हाउ मच, 3 मीटर. दिस इज 3 मीटर. सो कैन यू टेल मी कि फोकल लेंथ कितना होगा? कैन यू टेल योर सेल्फ? फोकल लेंथ विल बी प्लस 1.5 मीटर, है ना. प्लस क्योंकि राइट साइड में है, वर्चुअल फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का. इफ द ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर. अच्छा, इफ अ ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब यहां पे कोई ट्रक है, यहां पे कोई ट्रक है. वाओ, व्हाट अ ड्राइंग मैन. ट्रक का ड्राइंग बनाया मैंने. तो यहां पे कोई ट्रक है. ट्रक का डिस्टेंस इससे कितना है? 5 मीटर. मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज -5 मीटर. रिमेंबर -5, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव वॉट एवर मे बी द काइंड ऑफ मिरर वी आर यूजिंग. Find the position, nature and image and its find the position, nature of the image and its magnification. Position of the image is v, nature ये सब magnification से पता चल जाएगा. तो m ही मैं ढूंढ रहा हूँ इसका. साइज नहीं दिया है, इमेज का साइज नहीं पूछा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं दिया है हमें, तो उसकी साइज के बारे में फिक्र नहीं करनी है, ठीक है. सो फर्स्ट विल यूज योर मिरर फॉर्मूला. 1/u plus 1/v is equal to 1/f. Let's put the value. 1/-5 plus 1/v is equal to 1/1.5. So 1/v is equal to, देखो ये हो जाएगा 1/3/2, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5. So 1/v is equal to 2/3 plus 1/5. 3 5s are 5 3s are. So 1/v is equal to 5 2s are 10 plus 3/15. So 1/v is equal to 13/15. Okay, so यहाँ पे let me check it once. I think it is absolutely correct. 5 2s are 10, 1 3s are 3. So v becomes 15/13. So 15 divided by 13 is 1.15. So v is equal to 1.15 meter. Now v comes out to be positive and that is absolutely correct, क्योंकि image distance positive है, इसका मतलब है image यहाँ पे कहीं पे होगी, and that is बिल्कुल correct है. ये image is always virtual and erect in case of convex mirror, and image distance is always positive in case of convex mirror, ठीक है. सो v 1.15 बिल्कुल सही है. मैग्निफिकेशन ढूंढ लेते हैं. मैग्निफिकेशन इज -v/u विच इज minus of 1.15 by u which is -5. So let's find it out. 1 माइनस माइनस तो कट हो जाएगा. 1.15 डिवाइडेड बाय 5, 0.23 प्लस 0.23. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लस 0.23? सी, प्लस का मतलब है इमेजेस
वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लस का मतलब है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. और 0.23 का मतलब नंबर 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि वो डिमिनिश्ड भी है. ठीक है. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर behind the mirror. It is virtual, it is erect, and it is diminished. So this is the these are the image characteristics. 1.154 plus 0.23, virtual, erect, and diminished. Okay. So there are few more questions which we can do later, but this is, you can say, how to apply the mirror formula. Everything we have discussed about reflection, the reflection part of the chapter light is over, and I'm going to see you in the next class. Bye bye.